તો બે વસ્તુ કહેવાની છે. આજે આપણે 717 છેલ્લું પ્રવચન છે ગાથા 9-10 ઉપરનું, એ સાંભળશું. એની પહેલી 17 કે 18 મિનિટમાં એમનું પ્રવચન છે. પછી લાચનભાઈ શિફ્ટ ટુ ગાથા નંબર 13. એટલે આપણે તે વખતે લગભગ 18 મિનિટે બંધ કરશું. અને પછી રમેશભાઈ આવી ગયા છે, તો રમેશભાઈ એમના ક્વેશ્ચન અને એમને જે બી કહેવાનું છે આ ગાથા વિશે એ કહેશે. હવે બીજી વસ્તુ બધા માટે કામની છે કે આપણે બધા અત્યારે 3 કે 4-5 વિડીયો ચાલુ છે. એ ડઝન્ટ લુક ગુડ. આપણે કોઈને બોલાવીએ, આપણે એમને પ્રવચન કરવાનું કહીએ અને પછી આપણે બધા મોઢા છુપાવી દઈએ, ઇઝ નોટ ગુડ. ઇટ ડઝન્ટ લુક ગુડ. ઇઝ નોટ અ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ સ્પીકર. So I again request everybody to open their video. We cannot be disrespectful like that. ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળતા હતા ત્યારે આપણું મોઢું ખોલી નહોતા રાખતા, મોઢું બંધ નહોતા રાખતા. It doesn't look good. It doesn't look good. હમણાં નહીં, હવે જ્યારે એમ કહે છે કે વિડિયો ખુલ્લું રાખવાનું. એટલે મેં એમને પ્રોમિસ આપ્યું છે કે half the video will be open. Half at least. To start with. એટલે I request everybody to look at this thing and open their video. Let's be respectful to the speaker. Okay. चलिए अभी रमेश भाई. मैं पहले वीडियो शेयर करूं, उसके बाद कि अभी पहले रमेश भाई कुछ कहेंगे. We'll play a video. ગાડીમાં હોઈએ ને બહાર હોઈએ તો ચાલે, પણ પછી That's understandable. That's understandable. ગાડીમાં છીએ એટલે I respect Prem Bhai and Kokila Ben. They are in California. They are three hours behind us, but they are here ready. So we should pay attention. અને છોકરી છે ને એટલે અવાજ આવશે એટલે હું That's okay. રાખું છું. That's understandable. That's understandable. ઓકે, થેન્ક યુ. चले रमेश जी, आपका म्यूट पर है. आपका अपना ऑडियो म्यूट पर है. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, अभी ओपन कर दिया. जय जिनेन्द्र. हाँ जी, जय जिनेन्द्र. चालू करते हो रमेश हाँ, जी. अभी पहले वीडियो ऑन करें. भाई श्री की प्रवचन लगाए आप 19 मिनट का. हाँ, ओके. प्रवचन चालू करो. अच्छा, मंगलाचरण वगैरह ठीक है. रमेश जी, कुशल जी, प्रवचन हाँ, शुरू करता हूँ. તો એ શી રીતે વ્યવહારનો પરમાર્થનો પ્રતિપાદક વ્યવહાર છે સમજાવો. તો કહે છે કે ગુણ ગુણીનો ભેદ કરી અને જ્ઞાન ને આત્મા કેવો એ વ્યવહાર છે. ગુણ ગુણીનો ભેદ કરીને આત્માના જ્ઞાન ને આત્મા કેવું. આત્મા તો આત્મા છે જ, પણ એનો ગુણ જ્ઞાન છે અથવા એનો ગુણ ઉપયોગ છે. એ ઉપયોગને અથવા જ્ઞાનને આત્મા કેવો એ વ્યવહાર છે. અને એ વ્યવહાર છે એ જ્ઞાન પણ આત્માથી અભિન્ન છે, અભેદ છે. માટે અભેદનો જે ભેદ હોય એ અભેદને જાહેર કરે. અભેદનો ભેદ, અભેદથી જે ભિન્ન હોય પદાર્થો
એને પ્રસિદ્ધ કરી શકે નહીં. એમાં એકલું સ્વપ્રકાશક આવ્યું ને. શું કહ્યું કે વ્યવહાર પરમાર્થ નો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે? વ્યવહાર પરમાર્થ નો પ્રતિપાદક છે તો સાંભળ્યું, જાણ્યું, માન્યું, પણ એ કેવી રીતે વ્યવહાર પરમાર્થ ને બતાવે છે? તો કહે છે કે જ્ઞાન તે આત્મા એટલો ગુણગુણીનો ભેદ કરીને સમજાવવામાં આવે છે. તો જ્ઞાન તે આત્મા એ અભેદને જ બતાવે કે ભિન્નને બતાવે? જેની હારે જ્ઞાન અભેદ છે, આત્માની સાથે જ્ઞાન અભેદ છે, અને એનો ભેદ કરવામાં આવે તો જ્ઞાન તે આત્મા એટલું આવે. કેમ કે જ્ઞાન તે અભેદનો ભેદ છે, આત્માનો ભેદ છે. પણ રાગ દ્વેષ એ કોઈ આત્માનો ભેદ નથી. જો રાગ દ્વેષ આત્માનો ભેદ હોય તો રાગાદી આત્માને પ્રસિદ્ધ કરી શકે, પરમાર્થને કહી શકે. પણ એ તો કઈ આત્માની જાત નથી, માટે અભેદ જ નથી, માટે અભેદનો ભેદ નથી. ત્યારે કહે છે કે અભેદનો ભેદ શું છે? કે જ્ઞાન. તો જ્ઞાન છે એ પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે, પણ જ્ઞાન પરમાર્થને એટલે અભેદને જ માત્ર પ્રસિદ્ધ કરે. પણ એ ભેદ, જ્ઞાનનો ભેદ, આ રાગ છે, ના કર્મ છે, ના લોકાલોક છે, એને પ્રસિદ્ધ કરતું નથી. એ પ્રસિદ્ધ ત્યારે કરે ને કે લોકાલોકની હારે, રાગની હારે તન્મય થાય તો રાગને અને કર્મને પ્રસિદ્ધ કરે. પણ એ જ્ઞાન તો આત્માની સાથે અભેદ છે. અભેદનો ભેદ અભેદને પ્રસિદ્ધ કરે, ભિન્નને પ્રસિદ્ધ ન કરે. દીપકનો ભેદ પ્રકાશ છે, પ્રકાશ એનો ભેદ છે. તો દીપક પ્રકાશ છે એ દીપકને પ્રસિદ્ધ કરે, એ તો બરાબર છે. પણ એ પ્રકાશ દીપકને પ્રસિદ્ધ કરે અને ઘટપટને પ્રસિદ્ધ કરે એમ ત્રણ કાળમાં બનતું નથી. જગતના જીવોને એમ છે કે પ્રકાશ છે એ ઘટપટને પ્રસિદ્ધ કરે, ખોટી વાત છે. જેનો જે ભેદ હોય એવા અભેદને જ પ્રસિદ્ધ કરે, ભિન્નને પ્રસિદ્ધ ન કરે. આ શલ્ય અનંત કાળથી છે. એમાં જ્ઞાન છે તે પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે. એનું કારણ શું? કે જ્ઞાન તે આત્મા એ અભેદનો જ એક ભેદ છે. જે ઉપયોગ છે, શુદ્ધ જ્ઞાન છે, એ અભેદનો જ ભેદ છે. એ ભિન્ન પદાર્થનો કોઈ ભેદ નથી, દ્રવ્ય શુદ્ધનો ભેદ નથી. જ્ઞાન શાસ્ત્રનો ભેદ છે. જ્ઞાન તો આત્માનો ભેદ છે. તો એટલો ગુણગુણીનો ભેદ કરીને સમજાવો, તેનું નામ વ્યવહાર છે. અને એ વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેમ છે? કે એનાથી અભેદ છે. અભેદ છે માટે ભેદ અભેદને પ્રસિદ્ધ કરે છે, પણ ભિન્ન પદાર્થને પ્રસિદ્ધ કરી શકતો નથી. લક્ષણ લક્ષને પ્રસિદ્ધ કરે, પણ લક્ષણ રાગને પ્રસિદ્ધ કરે. રાગાદી અને કર્મ શરીરને પ્રસિદ્ધ કરે તો એ જ્ઞાન એમાં તન્મય થાય તો પ્રસિદ્ધ કરે, અભેદ થાય તો. પણ એમાં તો અભેદ થતું નથી. તો કેનાથી અભેદ છે જ્ઞાન? કે આત્માથી. તો એ જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે, એમ આમાં સમજાવવું છે 9-10 ગાથામાં. માટે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ આત્મા છે. આમ થવાથી જે આત્માને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવડી છે?
એમ જ આવે છે. આત્માને જાણે છે તે શ્રુત્યવી છે, એમ જ આવે છે. અને તે તો પરમાર્થ જ છે, એ તો નિશ્ચય છે, વાજબી છે, યથાર્થ છે. આ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના ભેદથી કેનારો જે વ્યવહાર, આટલો વ્યવહાર લીધો છે. લ્યો, રાગ છે તે ખરેખર વ્યવહાર જ નથી, અભેદનો ભેદ નથી, જાત જુદી છે. માટે આ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાનીના ભેદથી કિનારો જે વ્યવહાર, અભેદમાં ભેદ કર્યો તો એટલો વ્યવહાર થયો, સદબુદ્ધ વ્યવહાર. તેનાથી આ પરમાર્થ માત્ર જ કહેવામાં આવે છે. એ ભેદ તો પરમાર્થને પ્રસિદ્ધ કરે છે, અપરમાર્થને પરપદાર્થને ભેદ પ્રસિદ્ધ કરતો નથી. આત્માનું જ્ઞાન પરને જાણતું નથી એમ કે છે. આમાં એમ કહ્યું, ભેદ ભેદને પ્રસિદ્ધ કરે પણ ભીનને પ્રસિદ્ધ ન કરે. એટલે જ્ઞાન પરને જાણતો નથી, જાણનારને જ્ઞાન જાણે છે, કેમ કે જાણનાર તન્મય છે જ્ઞાન. શુદ્ધ નહીં નો ઉપદેશ પણ ક્યાંક ક્યાંક વિરોધ છે, એમ જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે બરાબર છે. પોતાને અભ્યાસ નહીં અને ગમે એની પાસે સાંભળી પ્રમાણ વચન કરે છે. એ આજ્ઞા પ્રધાની છે, એ ગુરુના શિષ્ય નથી. પરીક્ષા પ્રધાની હોય શિષ્ય, એમ લખ્યું છે શાસ્ત્રમાં, પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં છે. તેનાથી ભિન્ન અધિક કાંઈ કહેવામાં આવતું નથી. જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે, એ સિવાય બીજું કાંઈ એ પ્રસિદ્ધ કરતું નથી, કહેવામાં આવતું નથી કે જ્ઞાન લોકાલોકને જાણે. જાણે ક્યારે કે અભેદ થાય તો જાણે, તો એનાથી તો અભેદ થાય તો જડ થઈ જાય આત્મા. અહીંથી ભેદ પડે ને બીજે અભેદ થાય તો જડ થઈ જાય આત્મા. સવારે આવ્યું તો ચેતન શબ્દ યુગલજી સાહેબનો. તેનાથી બી નથી કાંઈ કહેવામાં આવતું નથી. એક કડક ભાષા સિવાય, નેપાળાનો રેત સિવાય પેટ સાફ થાય એવું નથી. પછી 30,000 રૂપિયાના ઇન્જેક્શન આવે છે મુંબઈમાં. આપણે બોગાણીભાઈ છે ને, એની દીકરીને બીમાર થયા ને, શૈલાબેન આવ્યા છે ને ધર્મપત્ની, તો 30,000 નું એક ઇન્જેક્શન. બોલો, એ મોટા ઇન્જેક્શન ની અત્યારે જરૂર છે. એટલે હેવી ડોઝ થયા. હેવી ડોઝ એવો છે કે પછી કોઈ બીમારી આવે નહીં, ને પછી તો શરીર પણ મળે નહીં, પછી અશરીર થઈ જાય બસ. તેનાથી બી નથી કઈ કહેવામાં આવતું નથી. વળી જે શ્રુતથી કેવળ શુદ્ધાત્માને જાણે છે, તે શ્રુત કેવડી છે, એવા પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી શુદ્ધાત્માને જાણે છે, એ તો પરમાર્થ તો વચન તો અનુભવગત છે, એ કઈ વાણીમાં આવી શકે નહીં. તો વાણીમાં કેટલું આવે કે અભેદનો ભેદ, ભેદ દ્વારા અભેદ સમજાવે, ઈશારો કરે અને લાયક પ્રાણીઓ સમજી જાય, અનુભવ કરી લઈએ. એવા પરમાર્થનું પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે. વચનાતીત છે વસ્તુ, કેવળ અનુભવ ગમ્ય. અનુભવ ગમ્ય રહ્યું તે જ્ઞાન જોત. અનિવાણી શું કે કેવળી ભગવાન કહી શકા નહીં, તો બીજા શું કહે. અને ખેંચીને કેવા જાય તો તું દોષ આવી જાય થોડો થોડો. આ ખેંચતાનો વિષય નથી. અનુભવ તો કેવળ
આત્મા ગમ્ય છે, વચનથી ગોચર નથી. જે સર્વશ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે, લ્યો, જે સર્વશ્રુત જ્ઞાનને, શુદ્ધ જ્ઞાનનો જેટલો વિષય છે એટલાને બધાને જાણે શુદ્ધ જ્ઞાન. એ શુદ્ધ જ્ઞાન સર્વને જાણે એ કેવી રીતે જાણતા હશે? શુદ્ધ જ્ઞાન છે પર્યાય જ્ઞાન, એ સર્વને કેવી રીતે જાણતા હશે? આત્માને જાણે છે તો એ તો નિશ્ચય છે, એ વાત તો કહેવાય ગઈ. હવે સર્વને જાણે એ વ્યવહાર છે, તો સર્વને તો કેવડી ભગવાન જાણે. એ જેટલું કેવડી જાણે એટલું શુદ્ધ જ્ઞાની જાણે. એટલે સાંભળ, ઈ શું છે? કે શુદ્ધ જ્ઞાનમાં અનાદિ અનંત પદાર્થો છે, જળ ચેતન બધા, એના દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય સહિત એનો પ્રતિભાસ થઈ ગયો છે નિગોદમાં. નવો પ્રતિભાસ થતો નથી. એ પ્રતિભાસમય જ્ઞાન છે. એવા પ્રતિભાસમય જ્ઞાન ને આત્મા કેવો? તે વ્યવહાર છે, સર્વશ્રુતને જાણે છે. શુદ્ધ જ્ઞાનના વિષયમાં, કેવળ જ્ઞાનના વિષયમાં કઈ કિંચિત માત્ર ફેર નથી. હા, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ એટલો ફેર છે. જે સર્વશ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે તે શુદ્ધ કેવડી છે, એવો વ્યવહાર સર્વ શુદ્ધ જ્ઞાનને જાણે તે શુદ્ધ કેવડી છે, એવો જે વ્યવહાર તે પરમાર્થના પ્રતિપાદકપણાથી પોતાને દ્રઢપણે સાબિત કરે છે. વ્યવહાર પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે, એ વાત 100% સાચી છે. છતાં વ્યવહાર અનુસરવા યોગ્ય નથી. ભેદ અનુસરવા યોગ્ય નથી. ભેદમાં આત્મબુદ્ધિ કરવા યોગ્ય નથી. ભેદને જાણવા રોકાવા જેવું પણ નથી. ભેદમાં રોકાઈ જાય ને, જાણીને ઠરી જાય ને. આ 9-10 ગાથા પૂરી થઈ. હવે વિચાર આવે છે 13 ગાથા લેવાનો. બરાબર. હા, બરાબર. હાજી રમેશભાઈ. ધ્રુવ મુझे પરણતિનમ કર બની પૂજ્ય પરમાત્મા उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव देखिए अभी पूज्य लालचंद भाई जी ने 9 और 10 गाथा में 2-3 बिंदु बहुत अच्छे लिए हैं। एक तो ये कहा है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है। आज हमारा आप सभी से प्रश्न है कि इसमें कौन सा व्यवहार लेना है। एक तो सद्भूत व्यवहार, एक असद्भूत व्यवहार। इन दोनों में से मात्र कौन सा व्यवहार है जो परमार्थ का प्रतिपादक होता है, और उनमें से फिर क्या लेना है, माने कौन सा। यदि सद्भूत लेना है तो सद्भूत में से कौन सा भेद, और असद्भूत लेना है असद्भूत में से कौन सा भेद है जो कि परमार्थ का प्रतिपादक होता है। आप लोग उत्तर दें। सद्भूत, अनुपचरित। सही है। उसका नाम बताएं। प्रेम बताओ, नाम आपको। म्यूट। प्रेम गड्ढा। कौन सा भेद है, मतलब वो ऐसा कौन सा भेद है जो परमार्थ को बताता है। रमेश भाई, अभेद का भेद क्या नाम बोलो ना। ज्ञान अभेद का भेद है। रसिकभाई प्लीज, चाहिए थे। ओ सॉरी, रसिकभाई प्लीज, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा।
रसिक भाई, आज भाई श्री ने ऑन कहा योर कि वीडियो, राग है रसिक भाई वो वीडियो, आत्मा का भेद नहीं है, ज्ञान वो आत्मा का भेद है, करेक्ट। क्योंकि ज्ञान आत्मा से कथनचित तन्मय है। राग आत्मा से कथनचित तन्मय नहीं है, नहीं है। शरीर तो है ही नहीं, कुटुंब परिवार तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान है वो कथनचित तन्मय है। कथनचित तन्मय होने से वह आत्मा का प्रतिपादन करता है, अभेद आत्मा को बताता है। अब इसमें एक और आपने प्रश्न पूछे, इसमें कौन सा ज्ञान लेना, मति ज्ञान लेना, श्रुत ज्ञान लेना, सामान्य ज्ञान लेना, केवल ज्ञान लेना, अवधि ज्ञान लेना, कौन सा ज्ञान है जो परमार्थ को बताता श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञान, है? श्रुत श्रुतज्ञान, श्रुत ज्ञान। जोर जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं आती। श्रुतज्ञान, श्रुत ज्ञान, देखो श्रुत ज्ञान तो वर्तमान में हमारे पास कुश्रुत ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। तो ऐसा कुमति और कुश्रुत ज्ञान क्या अभेद को बता सकता है? भावश्रुत ज्ञान की बात है। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं अक्सर भावश्रुत ज्ञान तो अभी हमें प्रकट है नहीं, भावश्रुत ज्ञान तो ज्ञानियों के पास है। चतुर्थ गुण स्थान के बाद में इसका उदय होता है। चौथे गुण स्थान के पहले भी क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो अभेद आत्मा को बताए या परमार्थ को बताए? मति ज्ञान। सोच के सभी को जवाब देना, तो और भी कोई जवाब? नहीं, मति श्रुतज्ञान, अनुमान से बता सकता है मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान है ना, चौथे गुण स्थान के श्रुतज्ञान पहले। ठीक है मति जी। शुद्ध ज्ञान जो चौथे गुण स्थान के पहले गुण स्थान में है, मति शुद्ध, उससे उससे देखो पर आदरणीय वो चेतन भाई मति जी, श्रुत ज्ञान वाला जो वो ज्ञान होगा जो ज्ञान में आत्मा है, जहाँ आत्मा का लक्ष्य है, जहाँ आत्मा ही एकमात्र लक्ष्य है। अभी तक भले सम्यक दर्शन न हुआ हो, मगर जो ज्ञान में आत्मा है वो वाला मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में को बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए अपन अपने विषय को देखें। आदरणीय चेतन भाई जी ने एक बार सोनगढ़ में चर्चा के समय एक बात कही थी कि ये जो पांचों ज्ञान है ना, इन पांच ज्ञान में से जो मति श्रुत अवधि मन प्रयोग केवल, इसकी उपाधि को थोड़ा गौण कर दो तो क्या बचेगा? ज्ञान 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 ज्ञान। सामान्य और जो ज्ञान बचता है वो ज्ञान सामान्य ज्ञान है। अभी आप एक दो दिन की हमारे एपिसोड को पढ़ रहे होंगे, सावधान सोचो को, उसमें इस बात को मैंने थोड़ा कोट किया था कि जो मति श्रुत अवधि मन प्रयोग केवल है, इनकी कटी हुई थी ना इनके थोड़ो लगा तो जो फेस होती डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? देखें जरा, ये मति श्रुत अवधि मन प्रयोग केवल, ये जितने पांच उपाधियां हैं वो ज्ञेय सापेक्ष है। उनकी परिभाषा ज्ञेय के तरफ से बनाई गई है, ज्ञायक के तरफ से नहीं है। ध्यान देना जरा, बात थोड़ी सूक्ष्म है। मति ज्ञान की भी परिभाषा जो बनी है, मनो इंद्रियों को निमित्त बना करके और रूपी या अरूपी पदार्थों को जानना, तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, वो सारी की सारी परिभाषाएं ज्ञेय की तरफ से बनी है। और ज्ञेय को जानना तो अपना उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करे ऐसा वो अभेद का भेद होता नहीं है। ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो ज्ञायक को प्रसिद्ध करे। इन पांचों ज्ञानों में जो ज्ञान 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 है, वह आत्मा का लक्षण है। और उस ज्ञान का नाम है सामान्य ज्ञान। वो ज्ञान है कर्मोपाधि निरपेक्ष। उस ज्ञान को पर्यायार्थिक न्याय का पारणामिक भाव भी कहते हैं।
अब उपभोग ज्ञान 17वीं 18वीं गाथा के अनुसार से आबाल गोपाल सभी जीवों के पास है और उस ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध भी हो रहा है। उपभोग ज्ञान लक्षण भी है, आज ही चर्चा आई थी। लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, अलक्ष्य को नहीं करता है। अब हमने 2 दिन पहले एक स्पष्टीकरण आपसे किया था, शायद कल ही किया हो। आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि जो कुछ भी हम डालते हैं सावधान सोचो को उसको पढ़ा करो, तो प्रकरण से आपको समझ में आएगा। गुरुदेव श्री का आधार लेके हमने बताया था कि किसी व्यक्ति के सामने समुद्र हो और वह 4 हाथ का कपड़ा अपनी आंख के सामने रखे तो समुद्र होते हुए भी उसे नहीं दिखेगा। ऐसे ही प्रत्येक जीव के ज्ञान का स्वभाव स्वभाव प्रकाशक होने से, और पहले नाम तो स्व का आता है, पर का नाम तो बाद में आता है, तो उसके ज्ञान में स्व का प्रकाशन तो होता ही है। लेकिन स्व का प्रकाशन होने पर भी ये स्व है, वह मैं हूं, ऐसी अपने आत्मा में अहम बुद्धि न होने से उसे स्व जानने में आने पर भी जानने में नहीं आता है, समुद्र होने पर भी दिखाई नहीं देता है। अब वो कपड़ा हटा ले, अर्थात अपने ज्ञान में से इन 5 उपाधियों को हटा दो आप, तो क्या बचेगा? अकेला ज्ञान। और उस ज्ञान का काम क्या है? जानना। किसे जानना? जिसका है उसे जानना। सबसे नजदीक देखो, अपनी ज्ञान पर्याय के सबसे नजदीक में नजदीक कौन है? अपना ध्रुव ज्ञायक आत्मा, बाकी तो सब दूर है। तो वह ज्ञान कैसा मूर्ख है जो सबसे नजदीक है, उसे कोई तो सत्ता स्वीकार नहीं कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है ये जानने में नहीं आ रहा है। और जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, रूपी शरीर, राग, स्त्री कुटुंब परिवार, देवशास्त्र गुरु, वो जानने में आ रहे हैं। क्या होता है देखो भैया, कि जब हम लक्षण की परिभाषा ये बनाते हैं, जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करे, तो यदि हमने मति शुद्ध ज्ञान को लक्षण बना लिया तो मति श्रुत की उपाधि ही ज्ञेय सापेक्ष होने से वह उसको ज्ञान मानने से आपको मात्र ज्ञेय को ज्ञेयों की प्रसिद्धि होगी, क्योंकि उनका नेचर, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव ही है कि वो ज्ञेयों की प्रसिद्धि करें, क्योंकि उनकी परिभाषा ही ज्ञेय सापेक्ष है, ज्ञायक सापेक्ष नहीं है। हमने कल डाला था कि चतुर्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी देव ने दिया है कि जीव का लक्षण उपयोग है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मति शुद्ध अवधि ज्ञान केवल ज्ञान जीव का लक्षण है, क्योंकि ये सारे के सारे पांचों के पांचों ज्ञान अब व्याप्ति दोष से युक्त है, निर्दोष नहीं है। क्यों? किसी में मति ज्ञान है, माने किसी में मति शुद्ध ज्ञान है, किसी में अवधि है, किसी में केवल है और किसी में मन पर्याय है। सभी जीवों में नहीं है, लेकिन ज्ञान सभी जीवों में है। तो जो पांचों ज्ञानों में से जो ज्ञान 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 है, अब इस ज्ञान की ऊर्ध्वता कैसे कैसे हो, माने सामान्य ज्ञान ऊर्ध्व कैसे हो और विशेष ज्ञान तिरोभाव कैसे हो। तो समय सार की 14वीं 15वीं गाथा के हिसाब से अपन देखें कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञान का तिरोभाव। गुरुदेव श्री ने स्पष्ट करते हुए वहां कहा है कि यहाँ सामान्य ज्ञान का अर्थ त्रिकाली नहीं लेना। आप चाहो तो फिर से उसका प्रवचन सुन सकते हो, तो अपने मन में दुविधा खड़ी होगी। सामान्य ज्ञान को तो हम हमेशा त्रिकाली सामान्य के परिप्रेक्ष्य में ही ग्रहण करते हैं, और गुरुदेव श्री यहाँ मना कर रहे हैं कि सामान्य का अर्थ त्रिकाली सामान्य नहीं लेना। सामान्य का अर्थ है वर्तमान पर्याय में बरतने वाला जो जीव का लक्षण है, मात्र उपयोग, मात्र जानना देखना, वो सामान्य ज्ञान है। तो जो उपयोग को ऊर्ध्व करते हैं उनके ज्ञान में ज्ञायक ऊर्ध्व होता है, और जो ज्ञेयों को ऊर्ध्व करते हैं उनके ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान ऊर्ध्व होते हैं। मैंने अपना परिचय, कोई भी व्यक्ति अपना परिचय अपनी पत्नी की तरफ से दे
या बच्चों की तरफ से दे तो समझना चाहिए वह व्यक्ति मर्द नहीं है, उसके अंदर स्वाभिमान खत्म हो चुका है। हम अपने ज्ञान का परिचय हमेशा ज्ञों की ओर से दें। यहां तक भाई साहब अभी कल की परसों के पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था कि केवली को लोकालोक का जानने वाला कहना एक केवली का अवर्णवाद है। आप कहोगे क्यों? ये तो हमने तो यही परिभाषा सीखी है, यही रटी है, यही अच्छी लगती है। जब जब ये आता है केवल ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो लोकालोक को जाने। अरे नहीं, लोकालोक तो उनके ज्ञान में सहज जानने में आता है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि उनकी स्वयं ज्ञान की पर्याय लोकालोक से निरपेक्ष रह के लोकालोक सादृश प्रणमती है, लोकालोक का लक्ष्य किए बिना, और अपने ही प्रणमन को जानती है। तो वो उनका प्रणमन क्या है? वो सामान्य ज्ञान है। अर्थात एक इंद्रिय से लेकर के केवल ज्ञानी तक में सभी जीवों को जो जानना 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 हो रहा है, वह जानने का नाम सामान्य ज्ञान है। अब ये जानना सामान्य ज्ञान हमें कैसे ऊर्ध्व हो, ध्यान देना जरा। तो अपन अब चले थोड़ा उस दुनिया में कि ये मतिस्मृत ज्ञान हमें ऊर्ध्व क्यों हुए हैं। क्योंकि हमने अपने ज्ञान का स्वभाव, नेचर, प्रकृति ये जान ली है, ये ज्ञों को जाने। मैंने अपने ज्ञान का परिचय हमेशा ज्ञों से लिया है, इसलिए मतिस्मृत ज्ञान ऊर्ध्व हो जाते हैं। आते हैं समाचार में कहा था ना कि किसी ने नमक का स्वाद सीधा नहीं लेकर के, डायरेक्ट नहीं चख करके, किसी न किसी व्यंजन के माध्यम से चखा हो तो वो हमेशा उसे व्यंजन ही खारे लगते हैं, नमक खारा नहीं लगता है। ऐसे ही हमने अनादि से आज तक अपने ज्ञान का स्वाद ज्ञों के माध्यम से लिया है, इसलिए क्या होता है, तुम्हें ज्ञान का स्वाद ही नहीं आता है। एक अपने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी थे माने हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, हमें अच्छा लगा था कि कभी आपने अपने दांतों का स्वाद लिया है? हम मिठाई खाते हैं, नमकीन खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, उसका स्वाद तो लेते हैं, लेकिन जिन 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है उसका स्वाद क्यों नहीं लेती है? कभी आप करना प्रयोग, कल सुबह अपने जीभ को अपने दांतों पे लगाना, और फिर जो दांतों पे लगाए बिना जीभ पर जो ज्ञान प्रकट होता है, तो दांतों को टच करने के बाद जो ज्ञान प्रकट होता है उसका अंतर समझना। ऐसे ही इसको पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नि केवल ज्ञान शब्द से प्रयोग किया है। वहां पे नि केवल ज्ञान का अर्थ है निखालिस मात्र ज्ञान, माने उसमें कोई उपाधि नहीं कर्म की उपाधि के बिना होने वाला ज्ञान, उसका नाम है नि केवल ज्ञान, उसका नाम है सामान्य ज्ञान, उसका नाम है ज्ञान लक्षण। तो क्या होता है कि जब ज्ञान को ज्ञेयों के ओर से ही पूर्त करेंगे तो ज्ञान के 5 भेद खड़े होंगे, और ज्ञान को ज्ञेय की ओर से ऊर्त करेंगे तो सीधा सामान्य ज्ञान खड़ा होगा। वो सामान्य ज्ञान में आत्मा जानने में आता है। अब हमें गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि जानने में आता हुआ भी जानने में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम जहां जानने में आ रहा है उसे नहीं करते हैं। देखो एक और आपको थोड़ा सा, अभी हमने एक उदाहरण दिया था कल ही, 1 तारीख को एक बच्चे को डाकू लोग उठा के ले गए, करीब 7-8 वर्ष, 6-7 वर्ष का था, 3-4-5 वर्ष का छोटा ही, लेकिन और फिर वो डाकू बन गया। और योग अनियोग अपने ही घर में डाका डालने आया। उसका 2-2.5 साल का फोटो उसके कमरे में पापा ने टांग रखा था, तो रात को उसने लाइट करके देखी, पापा वगैरह तो सब सो रहे थे असली, तो उसको अपनी फोटो से अपना याद आ गई, और वर्तमान में वो 24-25 साल का हो गया था। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अपना फोटो देखने के बाद वो अपने ही घर में डाका डलवाएगा कि नहीं, चोरी करवाएगा कि नहीं, कि अपने घर के अपने मम्मी पापा को बचाएगा? तो कोई ना कोई ऐसा उपाय करेगा कि जिससे अपने घर में चोरी नहीं हो पाए। कोई मोटी सी चीज लेके गिरा देगा, आवाज आएगी,
घर के लोग जागेंगे तो डाकू लोग भागेंगे। बस यही कला है क्या, जिस ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है उस ज्ञान को ऊर्त करने के लिए एक मार्ग रेडियस करिए कि मेरे ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। और आत्मा को जानना कैसा, मैं आत्मा हूं ये जानना है। अर्थात अब अपने ज्ञान में आत्मा को जानने की ऊर्ध्वता न करके ये नहीं खोजना है कि कहाँ आत्मा जानने में आ रहा है, ये निर्णय करना है कि मैं आत्मा हूं। और जो ज्ञान ये निर्णय करता है कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा का लक्षण बन जाता है। बना बनाए तो था ही, लेकिन कहने में आता है कि ये आत्मा का लक्षण। क्या होता है भैया कि एक और सरल उदाहरण दें हम, कि एक बहन खड़ी है, बहन अर्थात लेडीज, और उसके सामने उसका बेटा भी खड़ा है, पति भी खड़ा है, पिता भी खड़ा है और भाई भी खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, सर से पैर तक पुत्र को मां के अलावा उसमें कुछ दिखता है? पिता को बेटी के अलावा कुछ दिखता है? पति को पत्नी के अलावा कुछ दिखता है? भाई को बहन के अलावा कुछ दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसने भाईपना अपने में स्थापित किया है, उसे पूरी बहन दिखती है। पुत्रपना स्थापित किया है तो उसे पूरा का पूरा मां दिखती है। ठीक इसी प्रकार आप अपने में ज्ञायक की स्थापना करो, ध्यान देना, तो आपको ये लगेगा कि मेरा ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है, वो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। आपने पर में अपने पने की स्थापना की है, राग में, शरीर में, ये भी हमने परसों लिखा था। उससे क्या होता है, राग और शरीर में अपनत्व की स्थापना से यही लगता है कि पर जानने में आ रहे हैं। ज्ञानी को, आज ही शायद लिखा था हमने, कि ज्ञानी को, मैंने कल जो दिया था एपिसोड, कि ज्ञानी को पर जानने में नहीं आ रहे हैं, ये बार बार कोखना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके ज्ञान में निर्णित हो चुका है कि 24 घंटे मुझे मेरा ज्ञान जानने में आता है, अर्थात आत्मा जानने में आता है। इसलिए उसे पर का जानना बंद नहीं करना पड़ता है। उसे लगता है कि पर का जानना तो बंद है ही, कोई गाली भी दे, कोई सम्मान भी करे, तो हर परिस्थिति में उसे क्या लगता है, मुझे तो मेरी ज्ञान पर्याया जानने में आ रही है, तो मेरा प्रणमन है। तो अब देखिए, सम्यक दर्शन की सरल में सरल विधि क्या, जैसे कि अज्ञान दशा में अपने ज्ञान का परिचय हमने ज्ञों के माध्यम से लिया है, और अपने ज्ञान को मति सुतपति मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान जाना है। केवली तो आप है नहीं, सम्यक मति सुत ज्ञान ही नहीं है, मति सुत ज्ञान ही है। तो ऐसे ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान का ही धर्म था ज्ञों की प्रसिद्धि करना। अब आपने जब राग में और शरीर में अपने स्थापित किया तो आपको कौन सा ज्ञान लगा, ये ज्ञेयों को जानने वाला। अब आप यही आत्मा में एकत्व स्थापित कर दें, ज्ञायक में एकत्व स्थापित कर दें, अभेद में एकत्व स्थापित कर दें, निश्चय में एकत्व स्थापित कर दें, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा ज्ञान आत्मा को ही जानता है। किसी भी जीव को आत्मा नहीं जानना है, मैं आत्मा हूं ये जान। फिर से, किसी भी जीव को आत्मा नहीं जानना है, क्योंकि आत्मा जानने में नहीं आ रहा हो तब तो जानना हो ना। 2 दिन पहले हमने सिद्ध किया था, मिथ्या दृष्टि क्यों है, क्योंकि वह वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल अपनी मान्यता बनाए हुए है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञान की वस्तु व्यवस्था क्या है कि उसके ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, और वह आत्मा जानने में आने पर भी इस परम तत्व को, परम सत्य को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। वस्तु का स्वभाव उसकी ज्ञान पर्याय का, जो जिसे ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं, ज्ञान लक्षण कहते हैं, कि आत्मा ही जानने में आता है, और वो उसे स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अर्थात मिथ्या दृष्टि का मिथ्या तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रत्येक जीव को आत्मा जानने में आ रहा है, और जो स्वीकार कर लेता है कि आत्मा जानने में आ रहा है, तो ये सहज में सम्यक दृष्टि होता है। अब हमें प्रयोग की दृष्टि से देखना है कि आत्मा जानने में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
क्योंकि ये पर्याय दृष्टि हो जाएगी, पर्याय का लक्ष्य हो जाएगा। आत्मा हूं यह महत्वपूर्ण है। मैं शरीर हूं, मैं राग हूं, अभी तक ये वृत्ति चलती थी। तो शरीर और राग के अहम का परिणाम था कि पर जानने में आ रहे। आत्मा के अहम का परिणाम है आत्मा जानने में आ रहा। अब हमें आत्मा का अहम कैसे, आपका प्रश्न होना चाहिए। तो आत्मा माने अहम का विषय हमने आपको एक बार पहले बताया था, लेकिन शायद आप लोग भूल जाते हैं कि अपनत्वपना हमेशा जहां जीव को ज्ञान और सुख का आना लगे, प्राप्ति लगे, बस अपनत्व वहां होता है। जब तक आपको पंचेंद्रिय के विषयों में या पंच परमागम या पंच परमेष्टि से ज्ञान और सुख लगेगा, तब तक आपका अपनत्व वहां होगा और ज्ञान उन्हीं को जानता है ये लगेगा। एक बार यदि हम सुख और ज्ञान की स्थापना अपने आत्मा में कर लें कि मेरे सुख का दाता, मेरे सुख का कारण, मेरे सुख का स्वामी मेरा ज्ञायक आत्मा है, मेरे ज्ञान का दाता, मेरा ज्ञान का स्वामी, मेरा ज्ञान प्रदान करने वाला मेरा ज्ञायक है। तो ज्ञायक के अपनत्व से आत्मा जानने में आता है, इस बात की सिद्धि होती है। ज्ञायक के अपनत्व से पर जानने में नहीं आ रहा है, नास्ति रूप में, इस बात की सिद्धि होती है। पर के अपनत्व से सारी की सारी आत्मा की सिद्धि होने पर भी प्रसिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए ये प्रयोग का मार्ग, प्रयोग हमें ये करना होगा कि अपने ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है ये नहीं खोजना है। मैं कौन हूं, अहम कहाँ देना है, अपना तो किसे करना है, क्योंकि श्रद्धा के सुधारते ही ज्ञान में सम्यकपना आता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो 11 अंगों पूर्व का ज्ञान कर लेता है, उसके निमित्त से अज्ञानी कोई ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान उसे क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अहम आत्मा में नहीं कर पाता है। तो कहानी इतनी सी है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं नित्य हूं, मैं एक रूप में हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। बस ऐसा अनेक उपाधियों से अपनी स्वीकृति करोगे ना, तो समझ लो कि आप नियम से ज्ञानी हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही जानने का, ज्ञायक को जानना नहीं है, जानने में आ रहा है किस विधि से, जिन्होंने ये जाना है कि मैं ज्ञायक, क्योंकि ये निर्णय भी तो ज्ञान पर्याय करेगी ना। वो तो अपने रजनी भाई ने एक कविता बनाई थी मोनी बाबा की, और युगल जी भी कहते थे कि अपरिणामी आत्मा तो मोनी बाबा कुछ बोलते ही नहीं। इसलिए भैया ये हमें अपना पुरुषार्थ मैं कौन हूं इसके निर्णय और उसके अहमियत देना है, आत्मा को जानने में नहीं और पर के जानने का निषेध करने में, क्योंकि पर तो किसी को जानने में आते ही नहीं है। पर सादृश अपने ज्ञान की स्वच्छता का परिणमन ही जानने में आता है, और पर पे लक्ष्य होने से भ्रम करता है कि पर जानने में आ रहे हैं। और जिस जीव का स्वापय लक्ष्य होता है उसे 100 टन के सचोट ये निर्णय होता है कि 24 घंटे मुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, अर्थात अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान आत्मा से कथनचित अभेद। देखो एक बात और आज भाई श्री ने ली है कि केवली परमात्मा की वाणी में पूरे आत्मा का स्वरूप नहीं आता है। कारण क्यों है? भाषा है असंख्यात और गुण है अनंत। तो ऐसा अगर अपन कहें कि केवली की वाणी में जितना आत्मा का स्वरूप आता है, पहली बात तो पूरा आता नहीं है, फिर भी जितना भी आत्मा का स्वरूप आता है गणधर देव उतना नहीं झेल पाते। इतना आता है सोच लीजिए आप। एक तो पहले क्या है कि बहुत कम आता है, फिर भी जितना आता है गणधर देव उतना झेल नहीं पाते। फिर जितना झेलते हैं उतना गूथ नहीं पाते हैं, मैंने लिख नहीं पाते। और जितना गूथते हैं उसका शतांश आज हमें उपलब्ध है, और जितना उपलब्ध है वो पूरा हम पढ़ने में असमर्थ हैं, जानने में असमर्थ हैं। और उसमें से जितना प्रयोजनभूत है वो जान लें
तो भी केवली जो जानते हैं वो हमारा परोक्ष ज्ञान में जानने में आ जाए, हम श्रुत केवली बन जाएंगे। अर्थात कि आत्मा, गुरुदेव श्री इस बात को ऐसा स्पष्टीकरण करते हैं कि किसी जीव को 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो जाए और उसकी 1 करोड़ पूर्व की आयु हो, तो 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व तक आत्मा का दिव्य ध्वनि द्वारा जितना भी उपदेश दे वह आत्मा का शतांश ही होगा, मेरू के सामने राई जैसा वर्णन होगा। सोच लो कितने गुण आत्मा में होंगे। ऐसा अपनी महिमा नहीं आती है, अपनी ऊर्ध्वता नहीं लगती है। कभी लगे कि मैं इतना महान और इतना वजनदार और इतना विशाल हूं कि मेरे पैर जमीन में पड़ेंगे ना तो जमीन धंस जाएगी, इतने गुण मेरे में हैं। लेकिन मैं अरूपी हूं, इसलिए रूपी से मेरा लेना देना क्या। थोड़ी समय हम और आपके पास कम बचा है। रोज किसी न किसी मुमुक्षु का देह वियोग की घटनाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं। अपनी ज्ञानधारा झांझरी चली गई। आज भी एक मुमुक्षु भाई चले गए, डॉक्टर थे जामनगर के। कहने का से हमारा ये है कि अब हम केवल उतना ही निर्णय करें, उतना ही सोचें, उतना ही पढ़ें कि जिससे पर्याय को लाभ हो जाए। मैं तो लाभानी से रहता आत्मा हूं, पर्यायी बेचारी दुखी। तो दुखी इसलिए कि हमारा सच्चा निर्णय नहीं करती है। गुरुदेव कहते हैं कि केवली भगवान की वाणी में जैसा मेरा स्वरूप आया है वैसा स्वीकार नहीं करके अपनी पर्याय में, अपने बारे में कुछ भी भ्रम फैलाए, इसका नाम मिथ्यात्व है। युगल जी इस बात को कहते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से अपनी पर्याय में, अपने बारे में अनंत भ्रम फैलाए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है उन भ्रमों का असर उस पर कुछ नहीं होता है। स्वयं के फैलाए गए भ्रम से प्रूफ है मैं ज्ञायक आत्मा। इसलिए मैं आज भी सुरक्षित हूँ और अनंत काल सुरक्षित रहने वाला हूँ। ऐसा मैं परम सुरक्षित तत्व, और ऐसा परम सुरक्षित तत्व को हम समझें, पहचाने और एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करते हैं। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। देखो सुधा बहन को प्रश्न है। जो होता है, जो आज की चर्चा में आई थी बात, एक मिनट पर आपकी सुनते हैं। श्रुत केवली तो भाव श्रुत केवली, एक द्रव्य श्रुत केवली। तो द्रव्य श्रुत केवली तो 12 द्वादशांग के पाठी होते हैं, समय दृष्टि होते हैं, क्योंकि 11 अंक तो अज्ञानी भी पढ़ सकता है, श्रुत केवली की कोटि में नहीं आता है। लेकिन जिसे एक भी अंग का ज्ञान नहीं है, बल्कि अंग का शतांश ज्ञान है, वो भी श्रुत केवली है। क्योंकि प्रयोजनभूत तो आत्मा को जानना था ना। तो जिसने आत्मा को जाना है वही भी श्रुत केवली है, और जिसने भाव श्रुत, द्रव्य श्रुत को अपने भाव श्रुत ज्ञान से जाना है वो व्यवहार श्रुत केवली है। और व्यवहार श्रुत केवली तो बन जाते हैं, अपने आप श्रुत की लब्धि प्रकट हो जाती है। लेकिन जो भाव श्रुत केवली बनेंगे हम, तो उससे नियम से एक दिन केवल ज्ञान होगा। अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अब आपको जो पूछना है पूछिए। સુધાબેન ગો હેડ, તમારો સવાલ છે? ના ના તમારું બધું ચાલુ છે ઓલું? મારું કઈ ચાલુ છે ના સોરી ओके। सॉरी तो पंडित जी एक सवाल है जो उषाबेन ने जवाब दिया था ना आपको, भावश्रुत ज्ञान। हाँ, हाँ, तो अभी जो सामान्य ज्ञान तो सबके पास है ही, लेकिन जब भी वो हम्म। सामान्य ज्ञान ऊर्ध्व होकर जब न्याय को जानेगा, वो ज्ञान की बात, वो भावश्रुत हो जाएगा अनुभव के काल में। तो उनकी जो बात थी वो, मैंने आपने बोला कि मैं ये जो जो मैं ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक में एकत्व करना है, तो वो ज्ञान भावश्रुत हो जाएगा। वो जो सामान्य ज्ञान है, आपने बोला कि सामान्य ज्ञान, ज्ञान ते आत्मा में ज्ञान की सामान्य बात की, सामान्य ज्ञान की बात की, तो खाली सामान्य ज्ञान तो सबके पास है ही, लेकिन जब वो ऊर्ध्व होकर मैं आत्मा हूं ऐसा एकत्व करेगा तभी वो भावश्रुत हो जाएगा, वो आत्मा है। सामान्य ज्ञान की ऊर्ध्वता क्या?
तो पर्याय का सामान्य ज्ञान भी ऊर्ध करने के लिए जो द्रव्यरूप सामान्य वस्तु है उसकी ऊर्ध्वता अहमपना कि यही मैं हूं। जैसे कि वर्तमान में प्रत्येक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को शरीर की इतनी एकत्वता है कि रग रग रोम रोम पूरा उसे ही में इतना ही मैं हूं, मेरी इतनी ही सत्ता है। मैंने एक सोच लो कि जिस शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव होने पर भी, एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने पर भी हम इतना तादात्म्य संबंध का वेदन करते हैं कि जैसे कि इस शरीर से भिन्न कोई सत्ता ही ना हो। मैं जो कुछ कह रहा हूं आप बड़ा गंभीरता से सुनना जरा। क्या ऐसा ही एकत्व हमारा आत्मा में है? नहीं, जरा भी नहीं। आत्मा का अध्ययन करना अपने ज्ञान का, यदि नहीं है तो आपका सामान्य ज्ञान ऊर्ध हो से कहां से होगा? विशेष ज्ञान ही ऊर्ध रहेगा। और वो ज्ञान हमेशा ज्ञों के को जानता है, वो ज्ञों का ज्ञान करता है, यही यही कहानी चलती रहेगी। जितना तत्वपना शरीर में है पहले विकल्पात्मक ज्ञान में, उतना ही एकत्वपना अपने आत्मा में करना हो। अपने आत्मा में करना होगा, भाषा शैली है मैं आत्मा हूं, बस इसका निर्णय हो जाएगा और कुछ नहीं हूं मैं। जैसे मात्र शरीर हूं, मात्र शरीर हूं, मात्र शरीर हूं, जरा सा सुख दुख रोग बीमारी आई मुझे आ गई। ऐसा क्यों नहीं लगता कि सर्दी जुकाम बुखार मुझे नहीं शरीर में हुए हैं, मुझे तो मात्र ज्ञान हुआ? क्योंकि एकत्वता है। और ये परम सत्य है कि सभी को एक ना एक दिन शरीर छोड़ के जाना है। लेकिन ये अभिप्राय क्यों स्वीकार नहीं करने देता है? क्योंकि उसकी इतनी गहरी एकता हो चुकी है, माने मान बैठे हम, उसकी नींव को हम हिलाने नहीं देना चाहते। तो ज्ञानी के लिए नरक में रहे बाहर नरक कृत दुख भोग अंतर समरस घटी। मुनिराजों को देखो कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, लेकिन विचलित नहीं होगे, केवल ज्ञान ले लेते हैं, तो उनका एकत्व आत्मा में हो चुका है। इसलिए सामान्य ज्ञान को रजनी भाई ऊर्ध करने के लिए मैं आत्मा को जानता हूं, ये ऊर्ध नहीं करना है, क्योंकि इसमें पर्याय ऊर्ध हो जाएगी। मैं आत्मा हूं ये ऊर्ध करोगे, इसमें सामान्य ज्ञान ऊर्ध हो जाएगा। क्योंकि सामान्य माने जो ज्ञान आत्मा हूं यह ऊर्ध कर रहा है, वो ज्ञान की पर्याय में तो ऊर्ध हो रहा है ना, तो वही तो सामान्य ज्ञान का ऊर्धपना है। जिस पर्याय ने त्रिकाली सामान्य को ऊर्ध करके उसमें अहमपना किया है, वो पर्याय सामान्य ज्ञान हो गई, और उसमें आत्मा जानने में आ रहा है, उसे निर्णित हो गया। त्रिकाली जाना ही नहीं है तो फिर कैसे 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 एकत्व करें? त्रिकाली को तो हम फिर से बोलिए, आप सुन नहीं पाए, हम सुन नहीं पाए। हमने त्रिकाली को तो हम जाना ही नहीं है, तो वही त्रिकाली मैं हूँ, ऐसा ऊर्ध्व कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छा है। अभी अभी युगल जी की चर्चा आई थी 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा ज्ञान बताओ जो आत्मा के बिना हो। कोई भी ज्ञान है कि ज्ञान है और आत्मा नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान तो ऊर्ध्व है ना, ज्ञान तो परिचित है कि मैं ज्ञान के मैं जानने वाला हूं, तो मैं जानने वाला हूं, ये जिसने जाना है उसी के लिए आत्मा ऊर्ध्व हो गया है। अभी 7वीं 18वीं गाथा का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हमने युगल जी का डाला है। आप हमारे एक वीक के पूरे पढ़ लोगे तो आपको प्रश्न ही खड़े नहीं होंगे। हमने उसमें डाला है, युगल जी ने कहा है कि मैं अबाल गोपाल को आत्मा जानने में आता है, ये कैसे निर्णित करें? क्या चौथे गुण स्थान जैसा तो जानने में आता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि जानने में आता है। तो बहुत अच्छा दिया था उन्होंने उत्तर कि तुम इतना तो जानते हो कि मैं जानता हूं, तो तुमने अपने को जानने वाला स्वीकार किया, तो जानने वाले का नाम तो ज्ञायक है। माने आपने अपने अभिप्राय में मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा को जान रहा हूं, ये उसमें अंडरस्टूड आ गया कि मैं आत्मा हूं। तो ये ज्ञान पर्याय तो कह रहे कि मैं आत्मा हूं। और किससे कह रहे? जो आपने कहा, आपका प्रश्न क्या था कि जो आपका ज्ञान पर्याय है ना, ये ज्ञान पर्याय ज्ञायक के बिना वाला ज्ञान बताओ कि कहीं ज्ञान तो हो ज्ञायक नहीं हो। ऐसा तो नहीं होता। ज्ञान पर्याय में जब तक ज्ञों को विराजमान करते रहोगे, जैसे मान के चले कि बांग्लादेश में अभी कोई जेंट्स प्रधानमंत्री था
अब मान लो कोई लेडीज प्रधानमंत्री आ गई, तो जब तक जेंट्स बैठा रहेगा तब तक लेडीज प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? ऐसे तुम अपने ज्ञान में मात्र गे बैठा ले रहोगे तो सामान्य ज्ञान ऊर्ध कैसे होगा? क्या एक बैठा लो तो आपका सामान्य ज्ञान अपने आप ऊर्ध हो जाएगा। सामान्य ज्ञान को ऊर्ध नहीं करना है, गायक को ऊर्ध करने से सामान्य ज्ञान ऊर्ध होता है। तो आपका प्रश्न है कि हमें गायक कैसे ऊर्ध हो? ज्ञान तो ऊर्ध है ना, कोई भी ज्ञान गायक के बिना नहीं होता है, बस गायक ऊर्ध हो गया है, इतनी सी कहानी है। બરાબર. બાય ધ વે એક છે ને આપણે રમેશજી રોજ લખે છે આ હાજી. બુકમાં. ને રમેશ તો આપણે રસિકભાઈ એને સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઓફ અમેરિકાનું જે આપણું જે વોટ્સઅપ છે ને એમાં મૂકે છે. એટલે હમણાં જે રમેશભાઈ વાત કરી ને, સો વોટ એવર ઇઝ રાઇટિંગ એવરી ડે કમ્સ ઇન સ્વાધ્યાય ગ્રુપ્સ ઓફ અમેરિકા, એમાં રોજ આવે છે. એમની વાત કરે છે કે તમને આ બધી વસ્તુ વધારે ખ્યાલ આવશે. ને નાનો આર્ટિકલ હોય છે, વધારે લાંબો નથી હોતો. We can read it in like 2 minutes. એમાં રજનીભાઈ એક સોચો ઈ શીર્ષક નીચે રમેશભાઈ ચિંતન મૂકે છે અને હું લગભગ ઘણી વાર મને મોકલે એટલે હું ફોરવર્ડ કરતો હોઉં છું, પણ કોક વાર મારે એકાદું રહી ગયું હશે, બાકી હું દરેક વખતે મોકલું છું. એટલે બધાએ સ્વાધ્યાય ઇન્ફો જોવું એમાં. સ્વાધ્યાય ગ્રુપ્સ ઓફ અમેરિકા નું જે વોટ્સઅપ છે ને એમાં રમેશભાઈના આર્ટિકલ રોજ આવે છે. Can you send the URL for that to everybody? હાજી, कैसे उसको एक्सेस करें, क्या उसका URL है, ये भेज सकते हो आप આઈ થિંક सबको? એવરીબડી, આપણા બધા જ લોકો મોનાવાળા છે, દે આર પાર્ટ ઓફ સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઓફ અમેરિકા. સો દે આર ઓલ ગેટિંગ ઇટ. કોઈ ન હોય તો કહેજો, બાકી દે આર ઓલ પાર્ટ ઓફ સ્વાધ્યાય ગ્રુપ્સ ઓફ અમેરિકા. Can you share one more time that site? Look at Swadhyaya Group of America. Check it out. I'll check. I'll make sure. રજનીભાઈ ઈ સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઓફ USA છે. It's Sorry, written as Swadhyaya- USA. Okay, Swadhyaya Group of USA. Swadhyaya Group of USA માં બધાને આવે છે. તમે ચેક કરી લેજો, નહીં તો પછી we will see. रमेश जी, मुझे इधर थोड़ा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो नहीं है, मगर कंफ्यूजन क्या होता है कि गाथा 17-18 में और गाथा 49 में भी ऐसे ही बोला कि तू प्रथम आत्मा ने जान, तो आत्मा ने जान, तो अभी तो बात हुई, तभी ऐसे भाव नहीं उत्पन्न होता है कि मैं आत्मा हूं। तो जीव को क्या होता है कि पहले आत्मा को जानने को जाता है। क्या तकलीफ वहां हो जाती है, जो अभी तो अप्रतिभूत है ना, मालूम नहीं है स्वरूप। तो फिर आत्मा को जान नहीं, आत्मा को जान ऐसे क्यों बोला? ऐसे ही बोलना था ना कि तू ही आत्मा है। तू तो नहीं जान। बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका। तो देखो, आत्मा को जान, ये कौन से शिष्य के लिए उत्तर दिया जा रहा है? जो पर को मैं जान रहा हूं इस आदत से टेव गया है, उसे यही लग रहा है कि मैं पर को ही जान रहा हूं, उससे कहते हैं पर को जानना बंद करके आत्मा को जान। अब वो कमर कस के आ गया कि साहब आपने आत्मा को जानने को कहा है, तो मुझे आत्मा जानना है, बताओ। छुल्लक धर्मदास जी ने सम्यक ज्ञान चंद्र दीपिका में एक बात लिखी है, जब उनके गुरु ने ये कहा कि जानने वालों को नहीं जानता है, अंधा है क्या, तो उनकी आंखें खुली कि मैं जानने वाला हूं। ध्यान देना जरा, युगल जी भी शब्द को जोड़ रहे हैं। तुम ये तो जानते हो कि मैं जानने वाला हूं, ये तो जानते हो कि मैं जानने वाला हूं, तो जानने वाला हूं इसका नाम द्रव्य है, और जानता हूं इसका नाम पर्याय है। ध्यान देना जरा, जानना पर से यह निर्णय हमारे अभिप्राय में अंडरस्टूड है कि मैं जानने वाला हूं। अब जानने वाला हूं ये है वस्तु व्यवस्था, और उपदेश शैली है कि आत्मा को जान। तो आत्मा को जो जान है, वहां पर जो कहा गया है, वहां पर आत्मा को जानने के लिए नहीं कहा गया है ऐसा जान के मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला हूं। हाँ, वहाँ भाव मैं वो है, वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, ये जानोगे तो अपने आप आत्मा जानने में आ जाए। રમેશભાઈ, मैं वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, ये जानो, ये निर्णय करो बस। हाँ बोलिए रजनी भाई। नहीं बराबर, वही आप बोल रहा था, आपको बोल रहा था फिर से बताना मैंने फिर से। हाँ देखिए, फिर से देखो, एक बार रिपीट। पूज्य गुरुदेव श्री कई बार कहते हैं
कि जिन वाणी में बंसमोर कहने पर इसमें रिपीटिशन दोष नहीं लगता है। बराबर। हाँ, अब पहले प्रश्न को दोहराते हैं और प्रश्न समझ में आ जाएगा, उत्तर समझ में आएगा कि दो तरह के कथन है। 7वीं 18वीं गाथा कहती है कि आत्मा जानने में आ रहा है। 49 के गाथा कहती है कि प्रथम आत्मा को जानू। तो मैं आत्मा को जानू कि ये निर्णय करूं कि आत्मा जानने में आ रहा है। यदि आत्मा जानने में आ रहा है तो आत्मा को जानने का उपदेश क्यों देते हैं? समझ गए ना? ये क्यों प्रेरणा देते हैं कि आत्मा को जाने? क्या होता है कि जो जिसके ज्ञान में ये निर्णित हो चुका है, ये दृढ़ हो चुका है कि मैं ज्ञेयों को जानता हूं और ज्ञेय ही जानने में आते हैं, तो मेरे ज्ञान के कारण ज्ञेय हैं। ऐसे जीव को उपदेश है कि भैया तू आत्मा को जान। अब वो आगे बेचारा विनय से, गुरुदेव आपके चरणों में मेरा मस्तक है, आपने कहा आत्मा को जानो, मुझे विधि बताओ। मैं तो एकांत में बैठता हूँ आंख बंद करके, तो वो दिलीप भाई कहते थे ना, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, खोलते हैं तो आप सभी दिखाई देते हो, आत्मा तो दिखता नहीं है। ऐसा भोला जीव आया कि आप कहते हो आत्मा को जानो, हमें आत्मा को तो दिख नहीं रहा है, मैं कैसी आत्मा को जानूं? तो छुल्लक धर्मदास जी के गुरु कहते हैं भट्टारक जी कि जानने वालों को नहीं जानता। अभी भी उदाहरण दिया था ना कि प्रकाश, दीपक के प्रकाश के उजाले में प्रकाश का एक ही कर्तव्य है कि दीपक की प्रसिद्धि करे, पदार्थों की नहीं। तो तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान की एक ही ड्यूटी है कि गायक की प्रसिद्धि करे, गेयों की नहीं। आत्मा को जानने का जो उपदेश है वो बालबोध की क्लास है, और मैं आत्मा हूं इस समय सार की क्लास। मैंने मुझे देखो आत्मा जानने में नहीं आ रहा हो तो हम आपसे कहें कि आत्मा को जानो। हम तो अपने अपने ज्ञान से देख रहे हैं कि भी भगवान कहते हैं कि तुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, तू मान नहीं रहा है। अब क्या मानो? मुझे आत्मा जानने में आ रहा है ये नहीं मानो, क्या ये तो ज्ञान का पक्ष गया। मैं आत्मा हूं ये मानो। मैं आत्मा हूं जो एक ज्ञान स्वीकार करता है, उनके ज्ञान में आत्मा जानने में जानने में जो आ रहा था वो स्वीकृत हो जाता है। बस इसका नाम है आत्मा को जानना। तो मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। बस इस युगल जी का वाक्य, इससे छोटे से वाक्य से कि ये ध्वनि क्या कह रही है, तो जानने वाला तो गायक होता है, अर्थात मैं ही कह रहा हूं कि मैं गायक हूं। चाहे ये कहे कि मैं गायक हूं, चाहे ये वाला कहे कि मैं जानने वाला हूं, बहन एक ही बात है। रजनी भाई एक ही बात है। तो लौट की यहाँ आ गए हम कि मैं गायक हूं, अर्थात मैं जानने में गायक हूं। ये ज्ञान पर्याय ने निर्णय किया कि मैं गायक हूं, तो जान के निर्णय किया कि बिना जाने निर्णय किया? तो जानने में आ रहा था तब निर्णय में मोहर लगी, कि नहीं जानने में आ रहा था तब निर्णय में मोहर लगी? जानने में आ रहा था निर्णय में मोहर लगी। क्या नाम है? आत्मा जानने में आ रहा है। कहानी इतनी सी है, मैं गायक हूँ, बस इसकी उर्दुता करें। बहुत बहुत अच्छा रहा पंडित जी, बहुत अच्छा रहा आज का तो एकदम बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अभी रसिक भाई ले लो छो, रसिक भाई। हाँ रजनी भाई बोलो। हाँ बोलो, जिनवाणी। जिनवाणी, हाँ भले। ये जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ दुख। नववार नवकार मंत्र नो कावसक कराવું છું। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम।
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वाहिरियाणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वाहिरियाणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वाहिरियाणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वाहिरियाणम नमो वज्राणम नमो लोये सवसावणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव रियंताणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव सिद्धाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव आयर्याणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव वज्राणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव सावणम। बोलो बोलो परम वितरागी देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। જય હો જય આ હો વર્તમાન કાળમાં દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનની સાચી ઓળખાણ આપી તેના ભેટા કરાવનાર અધ્યાત્મ યુગ પ્રવર્તક જીનેન્દ્ર માર્ગ પ્રભાવક જીનવાણીના રહસ્ય ઉદ્ઘાટક જીનેન્દ્ર માર્ગ દાતા પરમ તારણહાર અનંત 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 ઉપકારી કાન ગુરુદેવનો જય હો। જય હો જય હો તદ ભક્ત ધન્ય અવતાર સ્વાનુભવ વિભૂષિત પ્રસમ મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય જય હો। હો જય જય હો મંગલ મૂર્તિ એકાવતારી પુરુષ શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય હો। જય હો પરમ વિતરાગ પરમ પવિત્ર સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો જય જયકાર। જય જય હો જય જયકાર હો જય જય ગાયત્રીની જય અમૃતવાણીનો જય હો। हाँ જય હો જય હો आज मुझे बहुत खुशी है कि कई वीडियो श्रोताओं ने अपने वीडियो ऑन किए हैं। कृपया इस प्रथा को बढ़ाते रहें। सब अपना अपना ज्वाइन करेंगे तो बहुत सबको आनंद आएगा। जब भी वीडियो ज्यादा होगा ना तब प्रवचन भी बहुत अच्छा हुआ। रमेश भाई सादर जय जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जिनेन्द्र जय 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 सबका जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सभी बहुत को अच्छा सादर जय जिनेन्द्र। कुशल जय जी रमेश भाई सभा के सभी उपस्थित सभी को જય જય मंगल सुप्रभात। रिकॉर्डिंग सब चलो जय